Jerome, when we were talking about your first trip to South Africa on debut, another thing that I wanted to ask you was the test debut very special? Yes, yes, it was. I was a part of the test team in 2021, and I didn't make it to the playing 11. So I was really sad that time, like very sad. But then I was like, okay, chalo, I have 4 days because we have a 4-day test match. Said I'll go practice as hard as possible, and then after that I said, chalo, I'll make my debut soon. But it actually took me so many more years because we didn't play a test match after that. And it so happened, like, out of all the places in the entire world, Mumbai was chosen for me to make my test debut, and it was even more special because my family was there. Prashant sir was there. He never comes for my games. I think because of that nervousness, he never comes. He watches from on the TV, but he himself was there. My family was there, and I was very nervous. But I think the ultimate pride for a cricketer is to get that test debut cap and to wear that whites. And for me, till now, even if you ask me which is my favorite format, I would say test cricket. I love playing test cricket. I just love batting all day. And I think it just suits my game so much more. Because all the other things, all about strike rate, this, that. But test cricket is just real. You can be your real self there. Just take your time, play, show your class. And I think I love test cricket. But yeah, that debut was very special. And, I know I don't want to say it in this way, but I was glad it didn't happen then. Because all these years actually prepared me so much more to make my test debut here, and it happened in Mumbai, in front of my home crowd, in front of my family, in front of my people, and at the same time it was special because I was more prepared to make a test debut, and just raising that bat for the 50 and just showing it more than anything else, just seeing the smiles on their faces. I think that was more special to me than anything else. When you showed that bat, any specific person that you were looking at for a quick acknowledgement? No, they all were sitting together. Okay. So all of them were clapping. So all of them, and I just saw them. That's it. I don't think I even saw much the dugout. Because they were right above. I just saw them, and I saw Prashant sir was like kind of relieved. Okay, she scored a 50 on the debut, so the monkey's off the back. I was under more pressure because you know what, I travelled from Goa. Oh yeah. So I was not there. So she just asked me because I was with the Goa Ranji team. So she said, yeah, you have to come, sir. And I was like, I never go for a matches. Correct. So to go for the debut, और वो थोड़ा रहता ही है ना हमेशा कि भाई कुछ अगर हुआ, and Goa Cricket Association also gave me the permission कि बोला ठीक है यार, it's a big moment for you also. So उनका भी बहुत ये था करके, otherwise they can easily refuse, कैम्प चल रहा है नहीं जा सकते अब. और मेरे को श्योर नहीं था इसका बैटिंग कब आएगी ना, वो भी तो है. Correct. अगर if she comes into bat the second day evening and all, I don't know, for मैं बोल भी नहीं सकता कभी रिपोर्ट करना है पर. एंड प्रेशर था कि यार, तो आई वाज आल्सो अंडर प्रेशर कि फर्स्ट टाइम जमीमा को डेब्यू में देख रहा हूँ. एंड व्हेन शी स्कोर्ड दैट 50, बोला यार बस डेब्यू सक्सेसफुल हो गया, आना भी सक्सेसफुल होगा, देखना मुंबई में स्पेशली बिकॉज मुंबई इज ऑलवेज स्पेशल फॉर अस. तो वो बट उसका एक स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग था उसके पीछे कि ऑब्वियसली हमारी बात हो रही थी, आइवन से बात हो रही थी कि अभी स्विच करना है ना फॉर्मेट्स, अभी डायरेक्टली रेड बॉल है तो वो एक अपने पेस पे चलता है वो. तो इंसिडेंटली ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैड विजय हजारे, गोवा विजय हजारे वॉज इन मुंबई. हाँ, तो ड्यूरिंग नवंबर आई वॉज इन मुंबई एंड वी हैड द फर्स्ट गेम एट CCA. एंड सिंस आई वॉज विद द टीम, अर्जुन वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग गोवा. सो सचिन तेंदुलकर सर, मतलब वो नाम थोड़ा लेने के लिए नहीं होता बट आई से मास्टर. तो मास्टर भी आए थे प्रैक्टिस को वो सेशन के लिए, और एंड ही वॉज इंटरेक्टिंग विद एवरीवन, बॉलर्स के साथ बात कर रहे थे, और आई वॉज लाइक अंपायर यहाँ खड़ा था. और तभी जब भी आते हैं सर तो भाई चुप बैठो और सुनो, कुछ सीखने को मिलेगा. एंड आई वॉज लाइक कुछ तो मिलेगा. एंड आर ओपनिंग बैट्समैन ईशान गडेकर वॉज बैटिंग एंड एक बॉल डिलीवर हो गया और सर यहीं पे थे ऐसे, उन्होंने देखा ऐसा और वो बीट हो गया वो शॉट पे. तो सर ने बोला कि भले तो बीट हुआ होगा बट ये ट्रस्ट करना ये शॉट पे, क्योंकि 9 बजे का स्टार्ट है, क्योंकि इवन इफ इट इज़ अ वाइड बॉल तो बॉल हिलेगी. तो ये, लेकिन आप ये मत सोचना कि नहीं हो रहा है तो फिर आप ऑन द रेस खेल लो, तो ये करना. मैं बोला यार ये तो मिल गया रेड बॉल का टिप. तो मैं बोला अभी ये तो अभी शाम को बोलना है. वैसा सेशन हुआ, फिर मैंने शाम को फ़ोन किया और आई टोल्ड यू कि बट दिस हैपेंड एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट शॉट बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले द रेड बॉल. DY पाटिल में भी मॉर्निंग को होगा, पहली बैटिंग आई तो
और that is how then she started. Of course हमारा नहीं हुआ क्योंकि I was traveling with the Goa team, but she practiced and made sure that you know कि वो shot A किया. और then जब वो खेल रही थी वो execute हुआ अच्छे से, she scored a 50 because हम लोग को एक बात समझ में आया कि शायद ये मिसिंग लिंक है हमारा प्रैक्टिस का, तो वो इनकॉर्पोरेट किया, वो हो गया. एंड देन आई टोल्ड मास्टर ऑल्सो लेटर कि बोला सर आप शायद वो बोल के भूल भी गए, बट उसका फ़ायदा जेमी को हो गया, यू नो, और उसका टेस्ट डेब्यू में 50 हो गया, ऐसा हो गया. तो सीखते रहते हैं आप, और वहाँ से तो क्रिकेट के भगवान से तो मिलता ही रहना है. Actually, Sachin sir has played a very huge part in my journey too, because I remember when I got my first India call up, he was the one who called me and he said, Jemmy, let's have a conversation, you can come home. I mean through Prashant sir, but of course, but जगदीश चौहान. yeah, but at that time, to tell you, firstly, women's cricket was not very well known to what it is here, and just to know like Sachin sir is following women's cricket and he knows my name, that was such a special moment. And I went to his house and you know, I was so nervous, like how is the conversation going to start, how is he going to be, first time I'm interacting with him. And I remember he came in first, he asked, you know, you'll have some tea, coffee. I'm like, no sir, nothing, I'm just here, I'm very happy. And then he asked me, so how is the preparation going? You're going to South Africa. And so he knew everything. Like he knew I was traveling and whatever. So I said, yeah, so I'm very nervous because I'm going to South Africa. Everyone is telling me it's going to nip, it's going to bounce. But I've been practicing short balls and I've been doing this. The first thing he told me, he's like, you know, you're nervous. That means you care about the game. And that put me at so much ease. Because my first time, I'm traveling abroad, playing international cricket. I've always heard you can't be nervous playing international cricket and this and that. But just to hear Sachin sir saying that if you're nervous, that means you care, just change the perspective. And he told me the second thing he told me, he said, you know, life is all about perspective. It's like what message you send your brain. If you tell your brain that, oh, it's going to nip, it's going to bounce, then automatically my body is not going to move as freely. You know, I'm going to be a little tentative. But if I say, oh, it's South Africa, nipping means it will come even better on my bat. If I just time it in the gap, it's a 4. Automatically your body language will change and the way you move will change. And he told me, I've seen your batting. So that time only I like, oh, Sachin sir has seen my batting. I've seen your batting and South Africa will suit you. Yeah. And that put me to, like, it just calmed all the nerves. You know, and I was like, if Sachin sir is saying it's going to, and it genuinely did happen. I did have a good debut, did really well in South Africa. Correct. And still it's one of my favorite countries to play in. So yeah, that is just one of the incidents of the many times I've spoken to Sachin sir. He's come to my practice sessions also. And you know, just given me advice. And whenever I speak to him, I always feel so much better about myself. And he's so positive. Yeah. Like, he'll never say, you shouldn't do this or this is wrong. He'll always give you a positive. And this is what can be done. This is what you're good at. So he'll always give you a very positive feedback and in a positive way how you can improve. Yes. So that really helps me. So yeah, I think I owe a lot to Sachin sir too. And it's just such a blessing that I never thought that, again, the right people at the right time. Correct. So yeah. Jemimah, I come back to you with that discussion to take it ahead. You know, you spoke about your debut, white ball cricket, red ball cricket. But, you know, these days there's a all format series that you play. So how do you switch these formats, you know, 50 overs, 20 overs, test matches? If you could just take us through the key behind adapting to these different formats. Yeah, actually, if you think about it, it's not the easiest because, you know, we played our test match. Within 2 days, we had to play a T20. Yes. We hardly had 2 days to switch. But I think, what helps me is my preparation months before for that series. Like, have I prepared well? Because on tour, honestly, you don't get enough time to prepare. So for any big series, it's never about that series. Like now the World Cup's also coming. We've already started preparing, I mean, maybe so many years ago for a particular event. So I think the first thing that helps me switch formats is my preparations before in the off season. We always we plan what all series, tournaments, and according to that, we'll plan. So I think that is the first thing. And the second thing is about, I think the mindset again stays the same. Because I remember when I was making my test match debut, I called up Prashant sir because domestic we had not played test matches a lot. I think the last I played was 3 years back. And directly I'm going to make my India debut. So other like T20, 50 overs, I've still played a lot of domestic. I called him up and he's like, you know, just the color of your clothes have changed. The color of the ball has changed. Yeah. A cover drive is still a cover drive.
he told me the only thing you need to do here is look to score runs. True. Even in a test match, because I was like, what, I need to leave the ball, he's like, no, when you look to score runs, you'll be in good position to even play the good balls well. And not just you'll punish the loose balls, but play the good balls well. Correct. So I think that mindset for me in a test game also helped me. And the previous day I had practiced, like sir said, he gave the advice what Sachin sir gave me. And the previous day, I just did that. I stuck to my basic stuff and I did that. I just practiced a good solid defense. Because I know if nobody can get me out, scoring runs is easy. True. And that's, I think, what test cricket is all about. So again, it was just about, one was the preparation, one was the mindset. Ki what the team requires me to do at that given position. And what format it is. Obviously, you have test match, you have more time. So just mentally just preparing yourself to, you know, what you need to do a day before. Correct. And what you need to do on the match day. That actually gives me a lot of clarity going in and playing. Because again, my game doesn't change. Yes. The cover drive is still a cover drive. Yes. It's just that, you know, how you approach it and what the team requires of you. Yes. Again, sometimes in the T20, I do play my one-day batting. Yes. When wickets have fallen, the building stage, I still get runs, but without risk. Still keep the scoreboard ticking. So it's all about assessing the situation and the conditions. Correct. And once I know what the conditions are and what the team requires me to do, it just gives me a clarity to go in and just execute my stuff over there. Brilliantly answered. You know, just to take that discussion ahead, Jemimah, two things. Coach, your student has told us, one is about the mindset and one is about the preparation. As a coach, Prashant, when you are training Jemimah before she approaches a big tournament or a big series, all format, how do you approach your coaching plan in terms of the mindset and also the technical aspect of the game? Yeah, technique is important. I don't see a problem with the technique as such, basically, because I feel that she has got one of the best downswing in world cricket. She has got the best downswing. So that is our strength, basically. Yes. So you have to work around it. So make sure that वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो. Simple. मतलब मेरा ध्यान I1 का ध्यान हमेशा हमारा वही फोकस होता है कि उसका स्ट्रेंथ ये है भाई, वो प्रोटेक्ट करना है. ओके और माइंडसेट, यस ऑफ कोर्स, मीन्स एडेप्टेबिलिटी फैक्टर तो चाहिए ही. एंड शी एडेप्ट्स एंड शी प्रोसेस्ड इट वेरी वेल कि प्रोसेस क्या है, ये फॉर्मेट का क्या डिमांड है, मेरा क्या स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से मुझे फिगर आउट करना है कि क्या करना है करके. मैं माइंडसेट का तो फिर तो मतलब एक बड़े टूर्नामेंट का आपने बोला कि आई टेल यू स्टोरी, मतलब इज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट कुड हैव कम फ्रॉम माई साइड. और क्रेजी थिंग मुझे कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ जेमी ही करेगी. कितना भी वो अगर हो गया तो कुछ भी अगर है तो I1 हम लोग कुछ भी क्रेजी ये कर लेगी. एटलीस्ट वो प्रोसेस करेगी क्या करना है करके. आई थिंक शी मेड अ कमबैक. जैसा कमबैक का हम लोगों ने बात किया तो एंड लाइक यू सेड, सिल्वर मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ अगेंस्ट इंग्लैंड शी प्लेड वेल. फाइनल ऑल्सो शी वॉज प्लेइंग वेल. द गोल्ड मेडल मैच शी वॉज प्लेइंग वेल एंड वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया. मतलब कंसिस्टेंटली मेरे दिमाग में यही आ रहा था घर पे बैठ के देख के, यार ये पोटेंशियल पे नहीं खेल रही है. एंड दैट इज़ मेरे को थोड़ा सा वो ऐसा बॉदरेशन जैसा हो रहा था कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ. और हमारा हमेशा तीनों का यही है, व्हाट नेक्स्ट. शी हैज़ प्रॉब्ली आज 50 टाइम्स व्हाट नेक्स्ट. अभी क्या है, भले आपने 200 रन किया है सीरीज़ में या 50 किया है, कैसा भी हो आपका, इट्स व्हाट नेक्स्ट हमारा हमेशा वो रहता है. और हम भी दोनों अपने टोस पे ही रहता है कि अभी जेमी पूछेगी तो भाई वी हैव टू हैव एन आंसर, राइट. तो वैसा था, तो मुझे वैसे ही लग रहा था. 2 हफ्ता मुझे लगे सोचने में कि क्या, ये तो मैं कन्विंस था कि ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रही है, बहुत कॉशियसली खेल रही है. ऑफ कोर्स बिकॉज द सिचुएशन वाले जो मेकिंग अ कम बैक इन टू द टीम, इट्स नॉट ईजी. बस यू ऑलवेज हैव दैट फियर इन यू कि नहीं हुआ तो वापस मैं ही ड्रॉप होने वाली हूँ. अगर अंदर आए तो पहला नंबर तो हमारा ही होगा. एंड शी डिड वेल. शी हैड सीमेंटेड हर प्लेस इन द 11. तो बोला कि ठीक है. तो एक दिन ये बैंगलोर में थी, कैंप था इसका, और एज रूटीन कॉल आया मेरे को कि व्हाट नेक्स्ट. तो मैंने जेमी को बोला कि टुमारो व्हेन यू गो इनटू बैट इन द नेट्स, हिट एवरी बॉल फॉर अ बाउंड्री. Every ball, huh? नो डिफेंडिंग, नो टेकिंग सिंगल्स, लाइक शी इज़ वेरी गुड एट इट. बोला नो. तो एंड इवन बिफोर शी कुड आस्क व्हाई, मैंने बोला कि 8 महीने हैं वर्ल्ड कप के लिए, राइट. इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर, और वो इसमें करना है. और मैंने उसको बोला देख, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम नॉकआउट में वी कैन बीट द ऑजीज और इंग्लिश टीम वैसा वगैरह. नॉकआउट्स, नॉट सेइंग इफ अगर इसमें लीग में बाहर गए, वी आर नॉट गुड इनफ टू
क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर दिस द नॉकआउट्स। तो बोला कि ये सोच रहे हैं कि भाई हुआ क्या है करके, मतलब ना ऑब्वियसली कि मैं बोल रहा हूँ कि हर बॉल जाके बाउंड्री मारना करके। बोला कि यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट with the talent that you have, you can easily play for 10 years for India. But how many matches are you going to make the team win? अगर बाउंड्री मार के सिंगल ही लेना है तो कितना मैचेस जीतेंगे? For us to win the World Cup, someone will have to play an inning like Harmanpreet Kaur, right? So I was very clear with that. कि then why don't you do it? For that to happen, you'll have to change your mindset. You'll have to change the way you practice. वे यू अप्रोच थिंग्स। तो ऑब्वियसली वैसा था कि बट दैट इज़ अ ह्यूज रिस्क कि अगर नहीं हुआ तो बाहर। और मैंने जल्दबाजी क्यों की थी? क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये नहीं वर्क करता है तो वी कैन ऑलवेज हैव दैट बफर। बट यू हैड अ बैकअप प्लान? वी हैड, बट वो टाइम पे मेरे पास नहीं था। अगर उसने पूछा होता तो मुझे मेरे पास नहीं था। बट ये ट्राई करते और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये करेगी। तो हो गया, 1 घंटा था और ऑब्वियसली वो भी पूछ रही थी बहुत क्वेश्चन, यू आर ट्राइंग टू प्रोसेस क्या है। 1 घंटा बात हुआ और 1 घंटे के बाद हमारा डिसीजन हुआ शी इज़ गोइंग टू ट्राई नेक्स्ट डे। मतलब ठीक है, यू ट्राई एंड लेट अस से। दूसरे दिन फ़ोन आया, सर आई फेल्ट गुड बट आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बोल दैट इज़ बाउंड टू हैपन एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी नो जजिंग यू, दे विल कम टू यू एंड बोला कि क्या कर रही है। हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, डोक्यात गेले क्रिकेट। हाँ सिंपल, अभी आई है टीम में और इसका क्या चल रहा है अभी। तो बोला कि दैट विल हैपन, यू विल गेट थिक स्किन, डोंट वरी। सो इग्नोर करना, उनको बोलना कि भाई मेरे को ट्राई कर रही हूँ तो चलेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहा हमारा। तो ऑन सम डेज शी वुड बैट, सम डेज शी विल रिस्पेक्ट द कंडीशन बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द श्रीलंका, क्योंकि हमारा एशिया कप था अगेंस्ट श्रीलंका। बाद में क्या हुआ कि हम लोग मिले नवी मुंबई में एंड सी आईवन, और हम लोग हमेशा आईवन और हम लोग डिस्कस करके करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। बट वो चीज़ मैंने आईवन को नहीं बोला था क्योंकि he would think like a father first, not like a coach. तो मैं बोला कि जेमी से बात करते, क्योंकि लास्ट में जेमी डिसाइड करती क्या करना है। तो वी आर नॉट इम्पोर्टेंट, शी इज़ इम्पोर्टेंट। तो आईवन भी ऑफकोर्स बोला यार क्या मेरे बेटी को, मतलब क्या रिस्क क्यों लेना है यार। बोला कि क्यों, और इतना हमारा बॉन्डिंग ऐसा है और रिस्पेक्ट है कि ठीक है यार ये तो अपना कुछ में भी अच्छा हो सकता है, 5% तो 5%। तो मैंने आईवन को इतना ही बोला कि बोला आईवन तुमने अपने लड़के को तभी खेलने दिया था ना जब भी कोई नहीं भेजता था, यू ऑलरेडी सपोर्टेड हर। हम लोग एक चीज़ करते हैं, बट आईवन हैड अ बैकअप प्लान विच आई एग्रीड कि बोला नहीं हम लोग ये सीरीज देखते हैं, इफ इट डजंट हैपन तो विल कम बैक टू आवर ओन थिंग कि जो कर रही है उसको करने दो। तो और हमारा प्लान था कि टर्निंग ट्रैक था ऑब्वियसली उधर, इट वाज अ स्लो पिच। तो वी हैड डिसाइडेड दैट इन 1 ओवर यू विल हिट 3 बाउंड्रीज। 3 boundaries, huh? टू हिट In an over? हाँ, इन एन ओवर। अगर मिला चांस, इफ यू फील द बॉलर इज वनरेबल, अच्छा हो रहा है, यू गो इनटू दैट माइंडसेट, आप करो 3 बाउंड्री मारना चाहिए ओवर में। तो ओनली देन क्यों पता चलेगा ना मैच सिनेरियो। प्रैक्टिस आप कितना भी करो, यू आर नॉट गोइंग टू बैक योरसेल्फ इन द रियल मैचेस, तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। तो 3 बाउंड्री मारा उसने, 2 बार मारा, एक तो हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज था। और ऐसा हो रहा था कि काफ़ी लोग सोच रहे थे कैसा करना, बट शी वॉज वेरी क्लियर कि भाई मेरे को मारना है करके। एंड शी स्कोर्ड 70-80 ऑल्सो, आई टोल्ड कि अभी जो तुम 45 कर रही हो, 46 कर रही हो ना, वो 20-30% से आप 70-80 तक पहुंचोगे। Wow. So you are putting your team into a match winning position. You are going to become a match winner by playing, by having this mindset. तो हुआ वैसे, वो सक्सेसफुल रहा हमारा। तो शी वॉज ऑल्सो हैप्पी। और उसमें एक जोक भी हुआ था कि हम लोग मैं, संदेश पराड़कर जो मेरे फ्रेंड है, और जगदीश चौहान, हम लोग फार्म हाउस से आ रहे थे उसके, और संडे इवनिंग था। और एज इट इज़ अच्छे इसमें मेरे संदेश पराड़कर ने बोला, और वो BMC संभालता तो जेमी भी आई है, तो वी नो, मतलब वो भी मतलब काय यार ती जेमी कितनी घाई करते। और फाइनल में क्या हुआ, 80 रन चाहिए तो इधर मारने के ऊपर आउट हो गई है। तो सडनली सबको क्या लगा, रहे यार स्टूपिड मतलब शॉट है ना ये। तो मैंने इसको बोला था यू लुक स्टूपिड, यू लुक स्टूपिड, मतलब होगा ही ना। सब तो क्या तो थोड़ी ना ऐसा होगा कि आप अचानक करोगे के, बट यू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड देयर विल बी पीपल विल टेल यू दैट यू आर स्टूपिड, यू प्लेड अ स्टूपिड शॉट। ओके, तो मेरे को मेरा फ्रेंड ने भी बोला हाँ, तो उसको बोल यार क्या इतना घाई करती है, घाई कशाला करते थी वगैरह। मैं अपना सुन रहा हूँ ना, हाँ यार सैंटी बोलता हूँ मैं उसको ऐसा ऐसा करके। और 10 मिनट में इसका फ़ोन, और हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं। और बोला कि सर कल मैच है
तो रूटीन हमारा था क्या पिच है, क्या बॉलर्स है, क्या है करके, और मैंने शुरू किया. डोंट फॉरगेट दैट माइंडसेट. फर्स्ट बॉल इफ इट इज इन योर स्लॉट दैट गोज फॉर अ बाउंड्री. ओके, दैट यू हैव टू कंटिन्यू. और ये भाई सुन रहे हैं, अभी कार में मैं स्लो भी नहीं बोल सकता हूँ. ये सुन रहे हो गया, फोन रख दिया तो बोला और वो मराठी स्लैंग में, मतलब तेरे को बोल रहा हूँ उसको समझाने को, तू ही उसको इंस्टिगेट कर रहा है. और बोला तू इंटरनेशनल प्लेयर से बोल रहा है, तू क्या कोई क्लब क्रिकेटर को नहीं बोल रहा है ना, जहाँ पे कोई नहीं देखता है, कोई नहीं करता है, तो पता है ना तेरे को क्या कर रहे हैं. तो जगदीश चौहान इज लाइक अ वेरी सॉर्टेड हमारा तीनों में, वो दोनों हमको बराबर से वो बैलेंस करते हैं. तो उसने बोला ठीक है, अगर कुछ प्लान रहेगा, बोला फिर उनको मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा है करके. फिर बोला कि ठीक है, फिर एक बैकअप प्लान रखना, ऐसा मत करना कि तुम तेरे को लग रहा है कि एक कुछ तो कोचिंग का हो रहा है, उसमें तू बह जाएगा. तो यार यू आर वेरी गुड ये ना, क्योंकि कभी कभी कोच को लगता है कि नहीं ये वर्क होगा होगा होगा, और हम लोग चले जाते हैं अपना उसमें, क्योंकि सिर्फ पर्सनल ये करने के लिए. बट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, द स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट, शी इज इम्पॉर्टेंट, एंड एवरीबडी इज इन्वॉल्व. इज नॉट ओनली मी एंड दिस आइवन इन्वॉल्व. बहुत कुछ है ना यार इसमें. तो वो हो गया. फिर खराब दिन भी आया. इन ऑस्ट्रेलियन सीरीज यू आर नॉट एट योर बेस्ट. बिफोर द वर्ल्ड कप नॉट इन ग्रेट टच, बट वो एक रखा था बैकअप प्ले कि कभी भी चांस मिला तो बॉस, अगर गेम सिचुएशन द गेम डिमांड्स, बॉस यू हैव टू गो. और वैसे ही हुआ. पाकिस्तान शी प्लेड वेल एंड कम द बिग डे सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड शी वॉज फोर्स्ड, क्योंकि 20 for 3 I guess, chasing 170 against Australians. तो पावर प्ले लाइक मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया इज लॉस्ट. ये आई, इससे पहले 3 बॉल बाउंड्री मारा. आई स्पेसिफिकली रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ स्पिनर इधर, दूसरा इधर, और तीसरा पेरी का ये फ्री हिट पे सामने मारा. एंड उस दिन ऐसा लगा कि हर बॉल बाउंड्री मार रही है ये. एंड शी वॉज लाइक ये, इवन ब्रेक के बाद भी फर्स्ट बॉल यू हिट अ बाउंड्री कवर ड्राइव. और मुझे ऐसा लगा कि यार गुड, एटलीस्ट इट्स हैपनिंग. और मुझे ऐसा लगा कि 5 ओवर ये और हरमनप्रीत खेलते हैं, वी आर इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा प्लान हुआ कि वो परफेक्ट हुआ या फिर ये हुआ, बट आपको कभी कभी माइंडसेट ऐसा करना रहता है कि आपको जाके कभी कभी आउट ऑफ द कंट्री क्रेजीएस्ट ऑफ रहेगा, बट आपको ट्राई करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा ना कि मैं ये कर सकती हूँ. मुझे इसको दिखाना था कि तुम्हारा पोटेंशियल ये है, लेकिन तुम फियर जो रहता है ना अपना बैटर को, वो फियर आपको अलाउ नहीं करते फ्रीडम की तरफ खेलने के लिए. एक बार एक बैटर का फियर निकल गया कि मैं आउट होने का है, फियर ऑफ फेलियर, तो फिर क्या है, हम डरते वही है ना कि 50 रन किया था, नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं. 100 होने के बाद सोचते हैं और 4 इनिंग होंगे कि नहीं तो लोग बोलेंगे कि एक बार 100 किया यार, ये तो एक ही बार 100 करता है. तो ये फियर जो ग्रिप करता है ना हमारा, वो कभी कभी आपको आपके पोटेंशियल, और मैंने बहुत क्रिकेटर्स देखा है, अभी भी जब भी क्रिकेटर्स आते हैं ना मेरे पास, मतलब जो भी समझो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर भी आते हैं, तो पहला बोलते सर मुझे ये इम्प्रूव करना है तभी होगा. तो मैं उनको पूछता तेरा स्ट्रेंथ क्या है, दे गॉट नो क्लू. स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वीकनेस पे वर्क किया तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका स्ट्रेंथ और ये हो कि आप परफेक्ट क्रिकेटर बनोगे. आप स्ट्रेंथ को करो, वीकनेस तो है ही ना. ऐसा कोई नहीं है कि आप वीकनेस पे वर्क किया तो आप अचानक प्लेयर बनोगे. जेमी के साथ जो होता है वो वैसे ही होता है कि आप स्ट्रेंथ पे करते जाओ ना. तो फिर वो होने के बाद वो जो माइंडसेट का इसका जो हो गया ना, उसके बाद में जब भी हम लोग कॉफ़ी शॉप में मिले तो यही बोला, नाउ यू नो दैट यू कैन प्ले एट दिस लेवल, यू कैन हिट 3 बाउंड्रीज एंड एन ओवर. नाउ इट इज अप टू यू हाउ टू अडैप्ट दैट, यू नो दैट आई डोंट नीड टू टेल यू. फिर आप करो, एटलीस्ट यू हैव टू स्ट्रेच योर लिमिट्स. भले मेरा वो जो बोलना था वो गलत भी हो सकता है, वो सबको, और मैंने उसके बाद किसी को भी नहीं बोला ज़्यादा, 1-2 को बोला होगा, बट मेरे को पता था कि जेमी कर सकती है और जेमी वो पोटेंशियल पे खेल सकती है. और आपको मैच विनर बनना है तो आपको डोमिनेट करके रन्स करना है, एज सिंपल एज दैट. आपको ऐसे ही खेलना है, 40-50 करना है तो ऐसे भी खेल सकते हो, बिकॉज यू हैव फाउंड अ वे. बट टू माइंडसेट आपका चेंज करके, थोड़ा रिस्क लेके, और 2 शॉट अगर आप डेवलप कर सकते हैं आपके स्ट्रेंथ पे. अभी क्या हो रहा है मोस्टली जो मैंने देखा है ना, कि पीपल वर्क ऑन द वीकनेसेस, दे डोंट वर्क ऑन द स्ट्रेंथ. जेमी के साथ मैंने और आइवन ने क्या किया है कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. अगर ये बॉल अगर मिड ऑफ के पास मारती हो तो वो सेम बॉल तुम पॉइंट के ऊपर से मार सकती हो क्या, जो उसने WPL में किया कि सेम बॉल. फिर वो सेम बॉल क्योंकि उसका फिटनेस इतना अच्छा है वो कर सकती है, वही वो बॉल लो जाके वो यहाँ पे भी खेलती है. तो शी इज ओपनिंग अप द फील्ड. अगर हम लोग वही सोचते हैं कमबैक से लेके, नहीं यार ये वीकनेस है इस पे ही करो, हम लोग शायद वीकनेस पे ही करते,
स्ट्रेंथ पे तो कभी भी काम नहीं करते ना, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट, बिकॉज दैट गिव्स यू अ मेंटल स्पेस जहाँ पे आप बहुत इनोवेटिव बन सकते हो. बहुत बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर से भी मैंने बात किया ना, वो कुछ ऐसा चीज़ करते हैं ना जो किसी ने किया नहीं रहता है, बट दैट क्लिक्स फॉर देम. वो सोचते हैं कि ठीक है, तो अलग बनते हैं ना, कुछ तो अगर ठीक है रिस्क है लेकिन बैकअप प्लान है ना आपके पास, आप वापस आ सकते हो. लेकिन हम 10 साल वही क्रिकेट खेलते हैं, वही वीकनेस पे काम करते हैं, और उसका कोई वीकनेस का सॉल्यूशन भी आपको मिला है कि नहीं वो भी नहीं मालूम रहता है बहुत लोग को. तो आप उसके ऊपर काम करते हो. उससे अच्छा बोला ठीक है वीकनेस, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, आप स्ट्रेंथ पे काम करो. वही जेमी ने किया है, वो स्ट्रेंथ पे अपना खेलती है. और ऐसा नहीं कि जेमी परफेक्ट प्लेयर है, वीकनेस तो है ना, बट उसके ऊपर भी हम काम करते हैं. बट स्ट्रेंथ पे आप जब भी करोगे तो आपको रियल पोटेंशियल आपको पता चलता है कि भाई मैं इनोवेट कर सकती हूँ, एंटरप्राइजिंग क्रिकेट करता हूँ, मैच जिता के दे सकते हो मेरे स्ट्रेंथ पे. तो जो भी प्लेयर को बोलना है कि भाई आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ पे खेल पहला, वीकनेस अपना चलते रहेगा. उसको 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, कभी लगेगा भी. यू फाइंड अ वे, यू नो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टैक्टिकली उसको हैंडल करो, टेक्निकली सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है. तो वो जो हुआ, बट एक मैं बोलता हूँ कि जेमी ने जो उसको प्रोसेस किया और जो किया ना, वो उसका क्रेडिट है. मैं तो और 10 क्या, I1 10 क्रेजीएस्ट ऑफ आइडियाज़ दे सकते, बट उसको समझना कि हाँ इससे मेरा 5% भी फ़ायदा है तो शायद मैं कर सकता हूँ. मुझे मैच विनर बनना है, ये जब भी आपको लगता है ना, तो आप फिर वो रिस्क भी लेते हो, आप 2-4 शॉट और ऐड करते हो. अभी आपने देखा 3 साल में कि जैसा उसका नेचर है वो वैसा खेलती है वहाँ पे जाके, वो अपने स्ट्रेंथ को बैक करती है. बाहर जो स्ट्रेंथ है उसका वही वहाँ पे खेलती है, और उसमें वो आउट भी हो जाएगी. एंड वी हैव नेवर डिस्कस फेलियर्स, डिसमिसल्स हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया. हमने पहला दिन पे डिसाइड किया था कि तुम्हारे जो भी डिस्मिस है वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज. सी यू नो व्हाट यू कुड हैव डन. सेम सिचुएशन आएगी, तुम्हें पता है क्या करना है. तो मैं घर पे बैठ के देख के मैं मेरा परसेप्शन क्या दे सकता हूँ ना, मेरा परसेप्शन गलत भी हो सकता है, बट हमारा बॉन्डिंग है तो वो मान भी लेगी. हाँ नहीं नहीं सर बोल रहे हैं, अरे बट तुमको ज़्यादा पता है, तुम वो लेवल पे खेल रही हो. ओके, तो वो रहना बहुत ज़रूरी है कि क्या है. हाँ, एक ही तरह का फील्ड लगा रहे हैं, वो एक ही तरह से हम आउट हो रहे हैं, वो ट्रैप हो रहा है या कुछ हो रहा है, सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर ठीक है वी कैन डिस्कस. अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट इन, और वो नेगेटिव क्यों होते रहना. आप 40 मैच में 35 बार आउट होते हो, और 35 बार अलग अलग सिचुएशन आप उसको एनालाइज करोगे, और 35 बार प्रैक्टिस करोगे, 10 बार तो करोगे सेम चीज़ के लिए, लेकिन वो उसका कोई है क्या मतलब. तो बार आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो अपने सिस्टम में, सबकॉन्शियस माइंड में. आप पॉजिटिव लो. वो इनिंग में आपने कितने बाउंड्रीज मारे वो सोचो, सिंपल है. तो ये जो I1 और हम लोग जो तीनों का बॉन्डिंग है ना, वो क्लियर रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, ऑलवेज क्वेश्चन रहता है व्हाट नेक्स्ट. तो वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, और व्हाट नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स, नॉट ऑन वीकनेस. ठीक है, जो भी रहेगा वो हम लोग वी वर्क, बट वी डोंट स्पेंड टाइम 1-1.5 आवर. इट कुड बी पॉसिबली हाफ एन आवर. बस फिर नेक्स्ट कौन सा शॉट तुम कर सकती हो और कैसे कर सकती हो. On that topic, when you talk about strengths, Jemima, when you started your career and now where you are, okay, a leaner frame that you have, but how do you generate the power behind your shots? As they say, packing a punch. What exactly happens with your shot hitting ability? I think, firstly, sir will be better, I'll say, from my bit of it. But I think from my thing, yes. One thing my dad actually told me that really struck a thing for me. He is like, you don't have to be someone else to score. Yeah, And you don't have to only hit sixes and be powerful. You can be smart and get your runs. Actually. And in women's cricket, one advantage we always have one player inside. Yes, 5. Yeah, the 5 players inside and 4 players outside. So there's always one option. So I think it took me a while to understand that, because I came into the T20 circuit itself when I made my debut. Everyone's this power hitter, everyone's hitting. There were so many times I felt like, okay, I also should do this and then only I'll get my runs. But whenever I've done that, I never succeeded, because that's not me. But I think over the years, I've understood my game so much that I've also realized that, getting a good strike rate is not just about boundaries and sixes. It's actually about the less number of dot balls you play. Yeah. Because getting a good healthy strike rate is simple. You hit a boundary, take a single, your strike rate is 250. So that's what I realized in my game, and it's been over like 2 years since it's come out really well, that it's not just about hitting sixes. For me, it's about picking gaps, hitting in the gaps. I always, I learned this from Virat Kohli actually. Whenever he constructs his innings, whenever he plays T20s,
it's always a very hard-working innings. He runs well between the wickets, and he told us one thing that whenever he tries to hit sixes in the gaps, because if it's mistimed, it's a 4. If it's timed really well, it's a 6. Or still, if it's like not that well, it's 2 or it's a 1. You'll not get out on it. Correct. So I think that is something that I try to imply in my game. One is that runs of every ball. Try to be as busy as possible. Try to play on the bowler's mind. And the other thing is, even if I hit in gaps. Yes. And if it's timed well, it goes for a 6. Yeah. Yeah. So just to take that topic ahead, Jemimah, when you were making this point about a boundary and a single, when you're batting, Jemimah, do you make these calculations in your mind that, okay, now I have hit a boundary. Okay, now do I look at a single or do I look at the ball? What exactly happens when you are on the pitch, having scored a boundary, the required run rate, or if you're batting first? What exactly happens? Do you calculate these things in terms of strategy, planning and strike rate? For me, my cricket is very calculative. I think even like Sir was talking about me moving a lot in the crease, me walking. It's not just randomly I feel like I should go outside off stump, so I go. No, I calculate a lot. I think what the bowler is doing. And basically my entire purpose of being there, like Sir said, my mindset is to dominate the bowler and not let the bowler dominate me. Correct. So I try to read what the bowler is doing firstly. Like if they're bowling me wide outside off with a deep point, with a sweeper, what's my option? Because every bowler is scared of getting hit firstly. As a batter, you need to realize that. Absolutely. So the moment I go there, they're very scared of getting hit here. So sometimes they bowl still wider. And because I have like such good downswing and hands, what Sir said, I know I have options on the offside, and if they bowl on the leg side, I have options on the leg side also. So it's just about me understanding my game a lot better. But like you said about hitting a boundary and taking a single, it's not always planned. Correct. It most importantly depends on what the team requires. Actually. So, for me also actually, the biggest struggle for me is for one ball I have so many shots, which shots to play well. But I think what gives me a lot of clarity in what I need, and clarity is a big thing in my game. I need to have clarity and I need to assess the conditions. Those are the two big things for me. But what gives me clarity is what the team requires for me. If the team requires me to hit a boundary of every ball, like that Australian innings, I will hit every ball. But if the team requires me to bat deep, play risk-free cricket, but still get my runs, I will take it deep. So again, there's no fixed formula. It's on that situation. And like Sir said, cricket is such a game. Every situation is different to the other. You can't pre-plan and stuff. But yes, I can prepare the previous day. Okay, if something like this happens, what's my options? Correct. And even in practice, I try to put myself in situations. Like, I honestly can't just bat for 1 hour. I need some challenge. And Sir knows, I need some challenge. I need something to keep me. One day, Sir will just come and say, you can't play the sweep shot today on a turning track. So that is another challenge I need to figure out a way, and that's a very big challenge for me. But that's how you can make it more interesting. And I know if I've done it in practice, I can go and assess the conditions, and I know I'm sorted for all types of situations and conditions. Wonderful answer. But she keeps us both challenged also. Yes, no. मतलब यार what next का वो आइवन भी थोड़ा परेशान हो जाता है यार, क्योंकि आएगी तो सेशन में क्या करना. I was just going to ask that, when Jemimah was telling us that boundary, single, lot of movements in the crease, trying to unsettle the bowler. But a coach is watching the match, maybe at home or at the ground like her test debut, or maybe somewhere else coaching some other team. What is Prashant Shetty's routine when Jemimah Rodrigues is batting? This I also don't know, actually. Nobody knows. We all want to know. We all want to खाली घर वाले को पता है. so we पता चल जाता है. अब ये सीक्रेट बाहर लाइए आप और हमें बताइए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है when your student is batting. सोफाज रखे हैं वहाँ पे, तो राइट वाला जो सोफा है टीवी के सामने वो मेरा है. तो whenever she bats, या फॉर्चुनेटली बाकी भी जो करते हैं, तो that is my place. तो थोड़ा सा, और वो फिर कंप्लीट ध्यान उसमें कि क्या करने वाली है. और पहला ऐसा होता था कि मैं प्रीएम्प्ट करता कि अभी ये कौन सा शॉट खेलेगी, पर अभी मुझे भी नहीं पता ये कौन सा खेलने वाली है करके. तो दैट इज अ साइन ऑफ मतलब ग्रेट प्लेयर कि भाई आपको पता ही नहीं ना क्या करना है करके. तो दैट इज माय रूटीन. पर प्रशांत अगर बट आई डोंट गो एंड वॉच हर लाइव स्टेडियम्स पे कभी भी. पर समझो बीट हो गए पहले 1-2 बॉल इनसाइड है, तो आप सीट बदलते हैं कि उधर ही बैठते हैं? उधर ही बैठे. व्हाटएवर हैपन वो कंसिस्टेंट हो वहाँ. वो कंसिस्टेंट है. ओके कोई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना. यस, वीड लाइक टू सी दैट. वो मेरे को भी क्लैरिटी नहीं ना फिर, तो माइंड में मैं सोचूंगा एक दिन यहाँ हो गया वो, तो ध्यान रखने में प्रॉब्लम. ट्यूसडे यहाँ बैठा था, फिर थर्सडे यहाँ बैठा पड़ेगा.
तो वैसा नहीं होगा. Good. So that's something that is out of the bag now. That so we know that where Prashant Shetty sits when Jemimah is batting. To just take this conversation ahead, Prashant, आपने बताया कि how you started getting into coaching, and somebody suggested to you, you got into it. But who is your inspiration as a coach? And tell us a couple of stories revolving around that particular incident. पहले कोच तो जब भी कॉलेज में खेलते तो हेमू दळवी सर थे, बट चंद्रकांत पंडित सर जब भी आए MIG में ना, आई थिंक दैट चेंज्ड मी. You also played with him, under him? Yes. और ऐसा जोक भी है कि उन्होंने मुझे कैप्टन बनवाया था, उन्होंने सजेस्ट किया था, और 3 मैच वो मेरे कैप्टनसी के अंडर खेले. Oh. मतलब वैसा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया और इट वाज लाइक अ शॉक. आई टोल्ड यू कि ऐसा मीटिंग चल रहा था और हम लोग मस्त अभी क्या खाने को मिलेगा, मतलब ना ऐसा था यार, ऑर्डर दिया कि नहीं मीटिंग है MIG का, पहला खाने का. और आई वाज लाइक ये, और चंदू सर लीड कर रहे थे, MP को भी खेलते थे, वो आके कर रहे थे. तो बोला कि फिर ऐसा प्रवीण बर्वे सर थे, तो उन्होंने बोला कि चंदू सर अवेलेबल नहीं रहते हर मैच को, तो वी नीड अ परमानेंट कैप्टन फॉर द MIG क्रिकेट क्लब टीम, सिंस इट्स इन A डिवीजन में हम लोग के. तो ऐसा चल रहा था, तो मैं भी सोच रहा था कि अभी इसका नाम आएगा, ये सीनियर का नाम आएगा. तो डायरेक्टली उन्होंने बोला कि चंदू सर ने प्रशांत शेट्टी का नाम किया. एंड आई वाज लाइक, मैं तो आई वाज शॉक्ड. मतलब सब सीनियर प्लेयर्स थे वहाँ पे और सर ने मेरा नाम ले लिया, और सर मेरे को देख रहे हैं ऐसा. तो मैंने सर से पास में थे, बोला सर मी विचार करून उद्या सांगतो, ऐसा मैंने बोला. मतलब कि मैं सोच के कल बताता हूँ. सर का क्या था रिएक्शन? बोल नहीं सकता यहाँ पे. तो और थोड़ा डिस्टेंस पे भी था मैं, मतलब कि एक पढ़ भी जाता मेरे को. तो बोला कि करायचं है तुला, और सैटरडेला मैच है, और ये थर्सडे को मीटिंग और सैटरडे को मैच, और मैं कैप्टन और चंदू पंडित सर मेरे अंडर खेलेंगे. मतलब अच्छा, he was available for that match, huh? was available but he wanted to जज बोलते हैं ना, पास ऑन करते पावर अपना, वैसा था वो. Succession planning. तो यार मैं बोला यार, मतलब 2 रात मेरे को नींद ही नहीं. बोला मैं सीनियर्स को कैसे हैंडल करूँ, चंदू सर को, मतलब क्या. तो हुआ उसके बाद तो टॉस टाइम अगेन विक्ट्री मेरे ख्याल से मैच था, मैच एट MIG एंड लालचंद राजपूत सर वहाँ पे थे. आई थिंक कोल्ड्स था या आई डोंट रिमेंबर. और टॉस को गया मैं, सर को दिखाया टीम मैंने, बोला ठीक है तुला काय वाटतं, हाँ ठीक है सर ये, हाँ को गया मैं. टॉस वहाँ पे मैं जीता. मैं अंदर आके सर को पूछने लगा, सर बैटिंग ले कि फील्डिंग ले. और सर ने ऐसा देखा, तू कैप्टन है ना, तू डिसाइड कर, मला नाही विचारायचं, मेरे को मत पूछना, तू डिसाइड कर. सर फिर बैटिंग करते. मैं क्या बोला तेरे को, बोला तू कैप्टन है ना, तू डिसाइड करेगा. ओके सर बैटिंग. तो सामने जाके उसको बोला कि बैटिंग करना है. और उसके बाद फील्डिंग आई, हमने बैटिंग किया, फील्डिंग आई. और अभी मैं सेकेंड स्लिप में था और कवर्स ओपन था, तो उसने 4 मारा, तो मैंने एक फील्डर वहाँ पे लगाया. तो सर ने बाजूला, काय घाबरलास, मतलब क्या डर गया तू, एक कवर ड्राइव मारा तूने, फील्डर लगा दिया उधर. तो मैं सोच रहा था सर 2 मैच पहले तो सर ने किया था ये, तो वही मैं फॉलो कॉपी कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली तो इट वॉज कॉपिंग. तो ठीक है फिर आजा भाई, वापस आके खड़ा रहा. तो और क्या हुआ कि फिर 3 ओवर के बाद सर ने बोला प्रशी तू थाम, मी करतो क्या. मैं बोला यार सर आप करो, आप मेरे को क्यों, मतलब ऐसा था सिचुएशन. बट वो क्या हुआ ना कि वो एक्चुअली वो मतलब प्रेशर डाल रहे थे, मतलब वो है भी वो सर वैसे ही कि. तो लेकिन वो जो 4 साल उनके अंडर खेला था और उसके बाद जो कैप्टनसी का ये हुआ ना, दैट हेल्प मी इन कोचिंग. और मेरा हमेशा टचवुड ना कि मेरा अच्छा रिलेशन था. वो जब भी काफ़ी लोग डरते थे उनसे, मतलब मैं भी डरता ही था ऑफकोर्स, बट वो एक मेरा एक अलग बॉन्ड था सर के साथ ना. वो हमेशा फिर बाद में 4 साल में अंडर 14-16 था, तो वो डायरेक्टर थे, तो 8 साल मुझे सर के अंडर मिले, और वो मुझे कोचिंग में बहुत फ़ायदा हो गया. और मैं, मेरे गुरु है वो, बस वो उनसे मैं दूसरा कोई ये नहीं कर सकता हूँ करके. बट और उनसे बहुत, और मैं हमेशा ये सोचता था ना कि बैठ के ऐसा कि यार ये बंदा क्यों इतना अच्छा कैप्टन है, क्या है ये आदमी में ऐसा कि यार ट्रॉफी जीतते, टीम बन. अरे MIG टीम सब जीते हम लोग, मतलब ऐसा कोई स्टार स्टडेड टीम नहीं था, बट वी वन एवरीथिंग. तो उनके फील्डिंग में सेटिंग्स देखता था. काफ़ी बार जेमी से मैंने डिस्कस किया कि वो क्या उनका साइकिल, वो कैसे रीड करते थे बैट्समैन को, कैसे करते थे. एंड मेरे हिसाब से जो वो इंडिया क्रिकेट है, बट बहुत हार्ड वर्किंग ये है. मतलब इंडिया खेलने जैसा कोच है, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग. वो जब भी
MCA BKC में भी थे वो, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ डायरेक्टर, वो 9:30 बजे तक अपना डॉक्यूमेंटेशन करते थे। और ये जो इंडियन कोचेज़ में ना कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं करते, बट वो करते थे। इसके वजह से वो मतलब फॉरेन कोचेस का क्या रहता है, दे डू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बट वी इंडियन कोचेज दैट वी लैक, बट वो करते थे, हर एक का रिपोर्ट बनाना ये वो करता। तो मेरे लिए मतलब वो 8 साल जो उनके अंडर मैंने किया वो इररिप्लेसेबल है। शॉर्ट पिच कौन सा है, बैक ऑफ द लेंथ कौन सा ऑन द राइज में मारना है, कौन सा फिर आपको ओवर पिच बॉल मारना है, छोटा गिरा तो आपको पीछे। जेमिमा का सक्सेस है, पृथ्वी शॉ का सक्सेस है। I had to bat till the 50th over to win the match. So there used to come a phase in a 50 over game and I'd written it down that even if runs don't come, मैं जेमी हूँ, मैं कभी भी मेकअप कर सकती हूँ। You are a top class international cricketer. Do you miss hockey?